let's discuss about fugacity. Consider a container having some hot water. Now vapors are going out. It means water molecules are going from liquid to vapor state. And this tendency of water molecules to move from liquid to gaseous state or vapor state is known as fugacity. Fugacity. तो क्या हो गया मैम? Escaping tendency, escaping tendency or tendency to expand, expansion होना ना. जितने भी हमारे पास केमिकल्स हैं, ठीक है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैस स्टेट में है, they want to expand. They want to expand. This molecules of any substance in the liquid form try to go in the vapor form, and this behavior of movement of molecules from one phase to another phase is known as fugacity, right? So escaping tendency of molecules of liquid into vapors is known as the escaping fugacity, is known as the fugacity, and its symbol is F. So इसका symbol F है. Now let's talk about fugacity in detail. In detail, consider a gas. Okay, please, and we know that its internal energy, free energy, etc. Let's say free energy is a function of temperature, pressure, and composition. And let's consider we have 1 mole of the gas. But we have 1 mole of the gas. 1 mole of the gas. Clear? G, the free energy of the gas, depends on temperature, pressure, and amount of the gas. We are considering only 1 mole here. 1 mole. So dg is equal to vdp. It is a very important thermodynamic equation, right? So this equation gives us the slight change in free energy of a gas. We have 1 mole of it. Its volume is V on changing its pressure by dP at constant temperature. तो हमारे पास एक गैस है, उसका 1 मोल है और उसका वॉल्यूम V है. फिर क्या करते हैं, उस गैस का जो प्रेशर है थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो फ्री एनर्जी में चेंज आता है, वो आता है dG, right? Then if we change pressure from P1 to P2, then delta G, the change in free energy is equal to, let's say please क्या कर रहे हैं भैया, चेंज कर रहे हैं इसको, that is V P1 से P2 प्रेशर को, ऐसे आ जाएगा ये प्रेशर को, very very important. And according to ideal gas equation, this PV is equal to RT, क्योंकि 1 मोल है यहाँ पर, प्लीज 1 मोल है. Now if we put the value of V here, that is RT or P, इसके होगा जैसे ये आपका क्या है, V is equal to RT और P, और ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे प्लीज, V की वैल्यू. Then dg is equal to फिर क्या है हमारे पास, ये देखिए प्लीज, ये क्या है यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे और उसके साथ में क्या है, इसको क्या करें हम वहां पर जैसे हमने रखा हुआ ना, क्या इंटीग्रेट कर देंगे ना बिटवीन लिमिट्स P1 एंड P2, वैल्यू करके यहाँ पर पुट करके, और ये आ जाएगा आपका RT ln P2 over P1, right? Let's say this is equation number 2 please. Equation number 2, और ये आपका आइडियल गैस है, इसमें ये वॉल्यूम है. क्लियर? अब यहां पर हम देख रहे हैं प्लीज,
जो इक्वेशन 2 है थोड़ा देखते हैं इसको ध्यान से। हमारे पास कोई क्या है, आइडियल गैस है, लेट्स से उसका जो प्रेशर है P1 से P2 कर देते हैं, दैट इज डेल्टा G फॉर आइडियल गैस। क्या ये आइडियल गैस, then RT ln, okay please, P2 or P1, 3, then we have the real gas, delta G is equal to real gas, okay please, ideal gas है ये आपका क्या real gas है, RT P2 और P1। So change in free energy of ideal gas delta G, okay please, that is your change in free energy of the ideal gas is equal to delta G, the change in free energy of the real gas, हमारे पास क्या लिखेंगे प्लीज, ये जो इक्वेशंस हैं 3 और 4 से ऐसा होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट सो। लेकिन क्योंकि देखिए हमने क्या दोनों गैसेस का एक एक मोल लिया, दोनों का क्या प्रेशर P1 से P2 किया, तो इस इक्वेशन के अनुसार जो इक्वेशन 2 है उनकी फ्री एनर्जी में जो बदलाव है वो बराबर आना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ये बराबर नहीं आता है। ठीक है प्लीज, प्रैक्टिकल क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट इक्वेशन इसको लिख देंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, ये दोनों बराबर नहीं है प्लीज, ऐसा होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होता है प्लीज, ऐसा नहीं होता है, ये दोनों बराबर नहीं है, ऐसा भी करो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है आइडियल गैस के बिहेवियर को क्यों तो एक्सप्लेन करती है, क्योंकि जो यहां पर ये जो डेल्टा G आया है यहां पर, ठीक है, प्रैक्टिकली उतना ही आता है जितना इस इक्वेशन से आता है। तो चीजें प्लीज, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस मेजर प्रैक्टिकली इज इक्वल टू चेंज इन फ्री एनर्जी गिवन बाय दिस फार्मूला, इक्वेशन 3। हमने क्या प्रेशर P1 पता है, P2 पता है, R पता है, कांस्टेंट टेंपरेचर पता है, ठीक है, तो क्या निकालना है, डेल्टा G द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस, फिर इसको प्रैक्टिकली निकाल लेंगे, दोनों बराबर आते हैं, लेकिन यहां पर ये ऐसा नहीं है। ठीक, यहां पर प्रैक्टिकली जो मैंने डेल्टा G निकाला है रियल गैस का और यहां से जो कैलकुलेट किया है इक्वेशन 4 से, ओके प्लीज, वो दोनों वैल्यू डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, यहां से ये वैल्यू क्या है, फिर इसके बराबर भी नहीं है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये आइडियल गैस के बिहेवियर को तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन रियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। दिस इक्वेशन फेल्स in explaining the behavior of or in explaining the change in free energy of a real gas when its pressure is changed from P1 to P2 at constant temperature T. ओके प्लीज, तो इस चीज को कंपेंसेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है, क्या किया कि हमारे पास जीएन लुइस, ये साइंटिस्ट है भाई, जीएन लुइस जैसे जीएन लुइस, उन्होंने क्या किया कि यहां पर ये जो हमारे पास प्रेशर है, यदि हम इसको एक नई टर्म से रिप्लेस कर दें, दैट इज नोन एज द फ्यूगेसिटी, फ्यूगेसिटी से रिप्लेस कर दें, क्लियर, तो हम क्या है, फिर फ्यूगेसिटी में क्या है, जो कमी रहती है, जो भी कमी है वो कमी वहां पर क्या है, रिकवर हो जाती है, कवर अप हो जाती है, इफ वी रिप्लेस द प्रेशर बाय फ्यूगेसिटी। ओके प्लीज, तो क्या भाई, इस तरह से डेल्टा G is equal to RT ln F2 और F1, that's it is equation number, okay please, 5 ले लीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है, 5, okay please। तो उसने क्या है प्रेशर को कि he gave a new term fugacity instead of pressure, right, और जो क्या हम
एफ क्या होता है भाई, ये इसको बोलते हैं करेक्टेड प्रेशर भी कहते हैं इसको, करेक्टेड प्रेशर, करेक्टेड प्रेशर भी कहते हैं इसको, प्रेशर भी कहते हैं, रेक्टिफाइड भी कहते हैं प्रेशर, ठीक है। और वैसे नाम क्या है इसका, एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी। या ये एक्चुअल प्रेशर भी है, एक्चुअल प्रेशर भी है, ठीक है प्लीज। यहां से हम आइडियल गैस के लिए जो प्रेशर निकालेंगे आरटी और वी इस कंडीशन में, ठीक है, प्रैक्टिकली वो प्रेशर इतना नहीं आता है, वो प्रेशर इतना नहीं आता है। इसीलिए फिर क्या है कि जीएन लुईस ने क्या किया कि हम जब यहां से आइडियल गैस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से जब किसी भी रियल गैस का बिहेवियर स्टडी करेंगे, वहां पर हम प्रेशर की बजाय फ्यूगेसिटी यूज करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स क्या हैं वो सही आएंगे। फ्यूगेसिटी यूज करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स क्या हैं सही आएंगे। दैट इज ये वाला यहां पर हो जाता है प्लीज। फिर दूसरा क्या है, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू है फ्यूगेसिटी की, इनका जो क्या होता है F2 over F1 is also known as the A activity। इसको क्या है एक्टिविटी भी कहते हैं यहाँ पर, ये एक्टिविटी। वास्तव में क्या होता है, जो फ्यूगेसिटी जो टर्म है, ठीक है, फ्यूगेसिटी जो टर्म है भाई ये गैसेस के लिए यूज होता है, यूज फॉर द गैसेस। और जो एक्टिविटी है इट इज यूज फॉर स्टडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। जहां पर हम सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो वहां पर कंसंट्रेशन को बताने के लिए या कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड जो भी हमारी स्टडीज हैं उनके रिजल्ट्स को सही करने के लिए हम वहां पर कंसंट्रेशन के बजाय हम एक्टिविटी यूज करते हैं। एक्टिविटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन while studying thermodynamic behavior of solutions या thermodynamic properties of solutions, we use the term activity, and in order to study the thermodynamic properties of gases, that let's say U, internal energy, enthalpy, then entropy, free energy, etc. What do? We use the fugacity instead of pressure, and then the ratio of the fugacity or pressure is known as this fugacity coefficient, what is from fugacity coefficient, that is F or P is equal to 1, लिमिट में क्या है P approaches 0, देखिए इसका मतलब क्या है, यहां से जब P की वैल्यू बहुत कम हो जाती है इसका मतलब क्या होगा, जब हम किसी आइडियल गैस को स्टडी करते हैं, आइडियल गैस को, तो दिस फ्यूगेसिटी मींस प्रेशर, सिंपल सी बात है, जो प्रेशर है वही फ्यूगेसिटी है इन केस ऑफ आइडियल गैस, ये एक ही बात है प्रेशर और फ्यूगेसिटी। लेकिन हमारे पास क्या होगा, देखिए प्लीज, रियल गैस में क्या होगा, अगर गैस रियल है, गैस रियल गैस है, ठीक है, then fugacity is equal to pressure when pressure is near to 0। जब प्रेशर बहुत ही कम होगा इस केस में भी, then fugacity प्रेशर ही होता है, या कुछ कर ले, या fugacity is equal to pressure in case of real gas when P is very very less, क्या लगभग 0 के बराबर। 0 नहीं हो सकता है प्लीज, ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है, थ्योरेटिकली हम ऐसे बोल रहे हैं, जो भी मतलब प्रेशर बहुत ही कम होना चाहिए तब भी क्या है, जो fugacity और प्रेशर ही होता है। थर्ड, now if you are studying real gases at NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे करना है भाई, या हाई प्रेशर पे करना है, हाई प्रेशर पे करना है। if we are studying behavior or something about gases at normal temperature and pressure or high pressure, then naturally fugacity is different from pressure, और यहां से फिर क्या कांस्टेंट भी होता है भाई, दैट इज यू F और P इज इक्वल टू गामा, इसको हम फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट। फिर इस कंडीशन में क्या है,
इसकी वैल्यू क्या है भाई, एक नहीं होती है, एक नहीं होती है। फ्यूगेसिटी इज मोस्टली लेस देन प्रेशर, राइट। जब ये कम है एफ पी से तो नेचुरली इसकी वैल्यू क्या है ब्रो, एक से कम आती है, एक से कम आती है। और जो हमारा ये कांस्टेंट है हमारे पास है ना प्लीज, ये कोएफिशिएंट है, it cover up the deficiency, okay, of the pressure of the real gases। देखिए जो हमने क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ एजम्पशंस की हैं, ठीक है, उन एजम्पशंस को सही करने के लिए रियल गैसेस के केस में हमें क्या है प्रेशर की बजाय फ्यूगेसिटी यूज करनी पड़ती है। और फ्यूगेसिटी के बहुत से क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है। एक तो क्या है कि जब कहीं पर भी इक्विलिब्रियम है वहां पर, ठीक है, हम क्या है थर्मोडायनामिक जो वेरिएबल्स हैं उनकी सही वैल्यू निकालने के लिए प्रेशर की बजाय फ्यूगेसिटी यूज करते हैं। फ्यूगेसिटी यूज करनी पड़ेगी तभी उन पैरामीटर्स की वेरिएबल्स की वैल्यू सही आती है, वैल्यू सही नहीं आएगी। और जो ये आपका कोएफिशिएंट है यहाँ पर फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है, तो ये क्या करता है भाई, जो प्रेशर में करेक्शन करनी पड़ती है हमें वो करेक्शंस करता है ये इन केस ऑफ रियल गैसेस, इन केस ऑफ रियल गैसेस। और बहुत सी गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हम उनके बहुत से बिहेवियर्स के हैं फ्यूगेसिटी टर्म को यूज करके आसानी से स्टडी कर सकते हैं। एक और बात कि हमारे पास बहुत से थर्मोडायनामिक्स लॉज हैं जहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंस है फ्यूगेसिटी की। और कई बार केमिकल पोटेंशियल वहां पर हम यूज करते हैं, केमिकल पोटेंशियल भी हम यूज करते हैं। सो दिस कंसेप्ट इज हाईली यूजफुल फॉर स्टडीइंग द थर्मोडायनामिक behaviors or variables of real gases, Okay, please, thanks.